Hello students, welcome again in Zahra's classes. Myself Dr. A. Zahra, and today I am here with another chapter of your English book, and this chapter is The Sound of Music. This chapter has been taken from Beehive, and here in this chapter you will find two parts. The first part is about Evelyn Glean. The writer of this chapter is Deborah Coley. So now let me first introduce you students what is this lesson about. The lesson's name is The Sound of Music. As the name suggests, the sound of music. What does this mean and what all things are incorporated into it? So you will come to know this is an inspiration giving lesson, and this inspiration is to those who are physically handicapped. Okay? And here in this lesson the author has shown how handicapped persons face trouble and difficulties in their life, and many of them they compromise also. बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो विकलांग हैं, बहुत तरीके से शारीरिक विकलांगता होती है और लोग इसको किस्मत समझ के उससे अपने सर्कमस्टांसेस से नहीं लड़ते और बीच में ही वो अपने हिम्मत से हाथ धो बैठते हैं, जवाब दे जाती है उनकी हिम्मत। लेकिन इस चैप्टर में लेखिका ने हमें ये बताने की कोशिश की है, ये उन लोगों के बारे में है, स्पेशली यहाँ पे जो पर्सन जिसके बारे में लिखा है एवलिन ग्लीन, इनके बारे में बताया कि ये एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होते हुए भी इन्होंने कितनी तकलीफ़ें और डिफ़िकल्टीज़ का लाइफ में सामना किया और आज वो जो उनकी डिसेबिलिटी थी उसको उन्होंने पावर बना के कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ी। बच्चों एक चीज़ और भी है कि किस तरह से एक अच्छा गाइडेंस किसी भी पर्सन की ज़िंदगी में एक अच्छा रोल, एक अच्छा गाइडेंस जो है कितना महत्व का काम करता है। किसी ने अगर आपको एक सलाह दी है, अच्छी सलाह दी है, तो उस सलाह से आप कितना उससे फ़ायदा उठता है, या जो किसी ने आपको बताया है वो किस तरह से आप उसकी सलाह को लेते हैं, वो भी इसमें दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज स्टूडेंट्स द साउंड ऑफ म्यूजिक इज़ वेरी द टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट and it relates the inspiring success story of a talented musician Evelyn Glean. ओके, और एवलिन ग्लीन का बता दें कि ये बचपन से ही इनकी सुनने की शक्ति कम थी और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो सुनने का पावर था, ये एबिलिटी थी, ये ख़त्म होती चली गई। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और म्यूज़िक को वो सिर्फ कानों से ना सुन के उन्होंने अपने पूरी बॉडी में किस तरह से एक्सपीरियंस किया और कैसे वो म्यूज़िक जो है, साउंड जो है, वो उनके पूरे बॉडी में वाइब्रेट करती थी। म्यूज़िक का वाइब्रेशंस उनके स्किन से, बाल से, चिकबोन से, फीट से, हर तरफ से वो सेंस कर सकती थी इन स्पाइट ऑफ हर डेफनेस। So here the title also alludes to the famous movie with the same name, and thus this title is very much appropriate, that is The Sound of Music. Okay, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एक गाइडेंस जो है मोड ऑफ एस्पिरेशन बनता है, अचीवमेंट्स, सक्सेस को वो एनहांस करता है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव विद द चैप्टर. So first we will start with the author. About the author, Deborah Coley. She was born in India but grew up in Toronto, Canada. She is a Ottawa-based writer and broadcaster and has written many articles for famous magazine Reader's Digest. I hope so many of you must have read Reader's Digest. इसमें उनके बहुत सारे articles कई बार लिखे गए हैं. She spent 2 years with United Nations Relief Work Agency in Beirut, Lebanon. Deborah Coley is also the author of Caro, a practical guide, and co-author of One Woman's Journey, a portrait of Pauline Vanier. So she is also a writer of these two famous works. So this was a very brief account on the author. Now we will start with the chapter. And in this very first part, it is discussed about Evelyn Glean. The pronunciation is Evelyn Glean. Listens to sound without hearing it. So, how fascinating it is that without hearing, Evelyn Glean can listen the sound. So, how
Let us see. But before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So ये what happens, एक मान्यता, एक सोच भी है कि जब एक सेंस, एक इंद्रिय भगवान ले लेता है, दूसरा सेंस उसका स्ट्रांग हो जाता है. तो यहाँ पे गॉड ने अगर हियरिंग पावर ली है एवलिन ग्लीन से, तो उसके बदले में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी प्रदान किया है. यानी कि हम जो सिर्फ अपने कान से सुन ही सकते हैं, उस चीज को एवलिन ग्लीन ने अपने बॉडी के हर पार्ट से महसूस करना शुरू किया, बहुत डीपली. इतना डीपली हम भी सुन के उसको महसूस नहीं कर सकते जितना डीपली एवलिन ग्लीन ने उसको महसूस करना शुरू किया. और इसी वजह से वो जो म्यूजिक है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती थी, इतना कि एक सुनने वाला पर्सन भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता था. सो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. तो बच्चों, ये हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशन वाला चैप्टर है. इससे आपको इंस्पायर होना, मुझे भी, आपको भी, कि कैसे हमारे पास तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे बॉडी सही सलामत है, हमारे पास सारे सेंसेस सही सलामत है, हम फिजिकली कहीं से भी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, सारी चीज़ें हमारे पास होते हुए भी हम हमेशा थोड़ी सी कम या ज़्यादा होने से मायूसी हमारे ऊपर आती है. लेकिन हम अगर इस बंदी के बारे में सुनेंगे, इस पर्सन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में इंस्पिरेशन मिलेगी और हमें लेना भी चाहिए कि कैसे एक फिजिकल कमी की वजह से भी उसने अपने किस्मत को नहीं कोसा और वो उस परेशानी से लड़ते जूझते आज वो एक सक्सेस लेवल पर है. एंड द पर्सन इज एवलिन ग्लीन. सो लेट अस स्टार्ट. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो यहाँ पे बताया है कि एक रश आवर है, एक बिल्कुल वो वक्त है, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे एक बच्ची खड़ी है और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड है. जॉसल यानी एक दूसरे से लड़ते भिड़ते, टच होते, ढकेलते हुए, पुश करते हुए बहुत सारे लोग हैं उस प्लेटफॉर्म पे और सारे लोग खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं. मतलब बहुत अफरा तफरी का माहौल है. और उसी अफरा तफरी के माहौल में एक पतली दुबली सी लड़की खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा यंग है, यानी 17 अपने टीनेजर्स में है और उससे भी बहुत यंग लग रही है, बच्ची है वो, लेकिन उसके चेहरे पे नर्वसनेस है. नर्वसनेस के साथ साथ वो एक्साइटेड भी है यहाँ पे, और उसके साथ साथ वो जो ट्रेन के धीरे धीरे आने की जो एक सनसनाहट है, आने की जो वाइब्रेशन है, वो महसूस करना शुरू करती कि ट्रेन अब आ रही है. ये उस बच्ची का पहला दिन था. वो परफॉर्म करने जा रही थी. कहाँ? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में है और वहाँ पे इस बच्ची का पहला परफॉर्मेंस था. बहुत डरी हुई थी, जो उतना डर था उसके चेहरे पे जो किसी भी एक टीनेजर के चेहरे पे होता, और वो भी एक फ्रेशर के, वो भी जो एक बहुत छोटी सी जगह से, स्कॉटिश फार्म से आई हुई. लेकिन ये जो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी जिसने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना ली है, वो जो म्यूजिशियन बनना चाह रहा है, वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है और उसने इस डर, इस घबराहट से बड़ी कुछ चीज़ अपने जीवन में झेली है, बड़ा कुछ चैलेंज उसने फेस किया है. क्या चैलेंज था वो? कि वो प्रोफाउंडली, शी वॉज डेफ, वो पूरी तरह से डेफ थी, यानी जिसको कहते हैं उसके कान से सुनाई नहीं देता था, वो बहरी थी. तो इस तरह से इस बच्ची में इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद भी उसने पूरे चैलेंज को फेस किया और ये जो छोटे मोटे डर या नर्वसनेस है वो उसके सामने कुछ भी नहीं थे. एवलिन ग्लीन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल यानी एक क्रमबद्ध तरीके से हुआ. ऐसा नहीं कि एक बैक या अचानक से उसका हियरिंग पावर लॉस हुआ, वो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती गई. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano.
They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glynn. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो ये पहले नहीं पता था और एवलिन ग्लीन का जो हियरिंग लॉस जो था वो धीरे धीरे हुआ, क्रमबद्ध तरीके से हुआ, बहुत अचानक नहीं हुआ। और उसकी मदर याद करती हैं कि कैसे उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बच्ची में ये कमी है कि जब वो 8 साल की थी और वो एक पियानो प्ले करने जा रही थी और जब उसका नाम बुलाया गया तो वो बिल्कुल भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो हिली ही नहीं वहाँ से। तो उनको अचानक से ये महसूस हुआ एवलिन ग्लीन की मदर को कि इस बच्ची में कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है। उनकी मदर इसाबेल ग्लीन को ये उस वक्त एहसास हुआ जब वो कितने साल की थी, 8 साल की। लेकिन बहुत समय तक एवलिन को भी ये चीज़ पता थी, लेकिन वो इस चीज़ को कंसील यानी छुपाना, वो अपने बढ़ती हुई डेफनेस को वो छुपा रही थी अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से छुपाती रही जहाँ तक हो सका। लेकिन जब उसके मार्क्स कम आने लगे न सुनने की वजह से, तो एक दिन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुला के बोला कि इस बच्ची को किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. As a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती है कि जब वो अब किसी स्पेशलिस्ट के पास गए तो वहाँ पता चला कि वो बहुत बुरी तरह से वो अपने कान की सुनने की शक्ति को वो खो चुकी है, इम्पेयर्ड, वीक हो चुका है बहुत बुरी तरह से। और क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ कोई एक नस थी, कोई एक नर्व थी जो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी और उसकी वजह से उनकी सुनने की शक्ति जो थी वो ख़त्म हो रही थी। तो उनको एडवाइस किया गया कि जो हियरिंग किट होती है, हियरिंग एड एक मशीन होती है जिसको लगाने से जो साउंड का जो एक फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और उससे जो इम्पेयर्ड पर्सन है उसको सुनाई देने लगता है। तो उनको एडवाइस किया गया, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि उसको हियरिंग एड लगा के किसी डेफ स्कूल में भेजा जाए। और इवलिन को ऐसा लगा कि एकदम उसके सामने अंधेरा छा गया, उसको ऐसा लगा उसके सपने वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. ठीक है, इवलिन जो थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उनको ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरी लाइफ नहीं है और मुझे जो है एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। मुझे किसी भी इस तरह की लाइफ को नहीं जीना है जो कि एक नॉर्मल लाइफ नहीं है। और वो चाहती थी कि वो पूरी लाइफ जो है वो नॉर्मल लाइफ जिए और वो अपने इस कमी से जूझेगी, वो अपनी इस कमी को लेके चलेगी और यहाँ पे वो उनका एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। ठीक है, तो बच्चों इतने पार्ट में जो वैल्यू पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है कि एवलिन ग्लीन सबसे पहले तो इट वाज हर टीन एज 17-year-old गर्ल एंड शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ बट शी वॉज कम्प्लीटली डेफ। ये कॉन्ट्राडिक्टरी एकदम स्टेटमेंट है कि एवलिन ग्लीन 17 बहुत छोटी बच्ची है, उस समय कोई मैच्योरिटी भी नहीं होती है, लेकिन बहुत मैच्योर्ड एक डिसीजन उसने लिया और उसको अपने लाइफ में म्यूज़िक को लेके चलना था, लेकिन बावजूद इसके कि वो डेफ थी। और ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो है ये वाइब्रेशंस जो हैं वो ट्रेन के वाइब्रेशन को वो फील कर सकती थी और वो जा रही थी एक प्रेस्टिजियस एकेडमी में म्यूज़िक की लंदन में अपना परफॉर्मेंस देने। और ये जो चीज़ें थी इनकी लाइफ में, ग्लीन की लाइफ में जो है बहुत छोटे समय से शुरू हो गई थी। हियरिंग पावर कम हो रहा था ग्रेजुअली और एट द एज ऑफ 8 उनकी नर्व्स डैमेज हुई और इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, और यहाँ पर ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उनको एडवाइस किया गया कि स्कूल डेफ स्कूल में भेजा जाए, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो इतने कम उम्र में एक डिटरमाइंड लड़की बनी और उन्होंने अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से लेके चलने का डिसीजन लिया और अपने इंटरेस्ट को भी परसू किया। इंटरेस्ट किस में? इंटरेस्ट इन म्यूज़िक में।
अमूमन बच्चों हम आप एक नॉर्मल बंदा जो भी है, एवलिन भी एक नॉर्मल ही इंसान थी, लेकिन इस समय इस तरह का डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि हमें शारीरिक कोई परेशानी है तो हम उसी में टेंशन में होते हैं, या फिर हम कहीं से डिसहार्टेंड हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म हो गई, हम डिस्करेज्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों सीखने की बात है कि इतनी कम उम्र में भी एवलिन ने अपने जो एक डिटर्मिनेशन थी, विल पावर थी, उसको उसने स्ट्रॉन्ग रखा, उससे वो कहीं भी वंचित नहीं हुई, कहीं पे भी उससे वो उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये हमारे सीखने की बात है, ये हमारे लिए सीखने की बात है, ठीक है। तो ये हमको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या हुआ अल्टीमेटली? वन डे शी नोटिस दैट अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जाइलोफोन, with and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो यहाँ पे एवलिन को जब जब एवलिन ने एक दिन क्या हुआ कि वो एक बच्चे किसी पर्सन को उसने एक लड़की को जाइलोफोन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको कैसा इंस्ट्रूमेंट है? रो ऑफ वुडन बार्स होते हैं डिफरेंट लेंथ का, और वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजा रही थी। तो उस दिन एवलिन को लगा कि मुझे भी ये बजाना चाहिए, मुझे भी एक करियर को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे बचाना चाहिए। लेकिन उसके टीचर्स ने उसको बताया, उसको डिस्करेज किया वहाँ पे, कह रहे नहीं तुम कैसे बजा पाओगी, किसी भी तरह की धुन को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको हियरिंग पावर होना चाहिए, महसूस करने के लिए, बजाने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, उसके सुर लय ताल। तो इस तरह की चीज़ों से उन्होंने उसको डिस्करेज किया। लेकिन वहाँ पे वो डिस्करेज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो परक्यूशनिस्ट यानी जो तबला वादक होते हैं, यानी पर्सन हु प्लेज ड्रम या तबला वादक को परक्यूशनिस्ट कहते हैं। तो उस समय एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। उन्होंने इसकी क्षमता को देखा, इसकी एबिलिटी को, योग्यता को पहचाना। पोटेंशियल मीन्स योग्यता, क्वालिटी और एबिलिटी। तो उन्होंने एवलिन की क्वालिटी को पहचाना और उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, और उन्होंने 2 ड्रम रखे। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स और 2 डिफरेंट नोट्स क्या होते हैं? म्यूजिक का ही एक लैंग्वेज है, या एक बहुत ऊंचे उस पे बनता पिच पे और एक लो पिच पे। तो हाई और लो साउंड्स, लो नोट्स को उन्होंने रखा, मतलब 2 ड्रम रखे जिनका एक हाई साउंडिंग था और एक लो पिच पे था। तो ये 2 डिफरेंट नोट्स पे उन्होंने रखा, और एवलिन को बोला कि इसको सुनो मत, कान से मत सुनो, लेकिन इसको सेंस करने की कोशिश करो, कुछ सेंस आपको महसूस होना चाहिए। तो एवलिन को सडनली क्या हुआ कि जब दोनों ड्रम बजा तो जो हाई नोट पे था ड्रम, उसको उसने अपने वेस्ट के ऊपर उसकी वाइब्रेशंस को महसूस किया। बॉडी में जो वेस्ट यानी क्या होता है? ये कमर का हिस्सा। तो इसने बताया कि एवलिन ने कि उन्होंने हायर ड्रम जो था, यानी हाई नोट पे जो ड्रम था, लार्ज ड्रम था, तो वो जो था वो उसके वेस्ट के ऊपर जो है कुछ फीलिंग आने लगी जब वो बजने लगा। तो और जो छोटा ड्रम था लोअर नोट पे जो था, जब वो बज रहा था तो उसके कमर के नीचे की तरफ कुछ वाइब्रेशंस या सेंस वो करना शुरू कर दिया उसने। तब फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तो इन्होंने बताया कि जब रॉन ने उनको बोला, फोर्ब्स ने, कि ऐसे 2 ड्रम्स मैंने रखे, इसको महसूस करने की कोशिश करो, तो वो जब सुनने लगी तो एवलिन को ये समझ में आया कि वो उनकी बॉडी कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, अलग तरीके से सेंस कर रही है, कुछ नोट्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं उसको रिएक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे एवलिन ने बोला कि उसने अब अपने दिलो दिमाग को खोलना शुरू किया और वाइब्रेशंस और साउंड्स को पहचानना शुरू किया उसकी बॉडी ने।
और बाकी उसकी मेहनत थी, उसका डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क एज वेल एज विल पावर था. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of a 3 years course, she had captured most of the top awards. तो जब एवलिन को ये चीज़ समझ में आ गई कि उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, अलग अलग साउंड्स और वाइब्रेशंस को वो महसूस कर सकती है उसकी बॉडी, तो वो एकदम से डिटरमिन्ड हो गई और अपने हार्ड वर्क को बढ़ाया और वो अब वहाँ से उनका पीछे मुड़ना संभव नहीं था. कई जगह टूर किया है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम्स में यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, वहाँ पे वो बैंड के साथ जाती थी. वो उस समय 16 साल की थी और म्यूज़िक को तब उन्होंने डिटरमिनेशन किया कि नहीं, अब जो है ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है और मुझे म्यूज़िक को ही अपना कैरियर और लाइफ चुनना है. वहाँ पे उन्होंने ऑडिशन किया, डायरेक्टर्स के सामने जो है अपने परफॉर्मेंस को शो किया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और सबसे हाईएस्ट स्कोरर थी वो. मतलब ये एक रिकॉर्ड था कि इस तरह की फिजिकली हैंडीकैप पर्सन ने इस लेवल के काम में सबसे हाईएस्ट स्कोर हासिल किया. वो एक हिस्ट्री ही रह गई उस एकेडमी की. और धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में बैंड के साथ, ग्रुप के साथ अपने टैलेंट को शो करने की बजाय उन्होंने सोलो यानी सिर्फ अकेले दम पे परफॉर्मेंसेस दिए. और उनका जब कोर्स का 3 साल पूरा हो गया तो 3 साल पूरे होते होते उन्होंने मैक्सिमम अवार्ड्स को भी कैप्चर किया. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है. उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जब आप किसी काम के प्रति लगन से काम करते हैं, आपका संकल्प बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपने एक रास्ता चुना है तो आपको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता, आप डेफिनेटली वहाँ जाओगे. तो ये कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं था. और इन्होंने बताया कि सब जो काम उन्होंने किया वो सिर्फ एक मेयर संकल्प और हार्डवर्क की वजह से था. और उन्होंने हमेशा अपने आप को एक टॉप लेवल पे पाया और यहाँ पर एक मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी वो, मतलब जो तबला वादक, हर तरह के वादन, ड्रम को उन्होंने बजाया, मास्टरी थी, बहुत 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने बजाया और बहुत सारे हैक्टिक इंटरनेशनल शोज़ को भी उन्होंने किया. ठीक है. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussions, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो यहाँ पे एवलिन को देखना, मतलब ऑल्दो वो हियरिंग प्रॉब्लम थी, वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन इतने ब्यूटीफुल तरीके से, इंट्रिग्यूइंग, फैसिनेटिंग तरीके से उनका फंक्शन करना, उनका परफॉर्मेंस देखना बहुत अच्छा था. उनके साथ जब 2 घंटे का डिस्कशन हुआ तो उसमें उन्होंने कोई भी वर्ड को मिस नहीं किया और वो उतनी ही आसानी से, उतने ही फ्लॉलेसली वो स्कॉटिश लैंग्वेज को बोल सकती थी. वो उस एक्सेंट में वो बोल सकती थी बिना मिस्टेक के, फ्लॉलेस, बिल्कुल बिना मिस्टेक के वो बोल सकती थी. उनका ये कहना था कि सिर्फ लिप्स के मूवमेंट को वो वॉच करके नहीं सीखती थी, बल्कि पूरे फेस और आंखों के एक्सप्रेशन से भी वो बंदा आगे क्या कह रहा है वो उसको समझ सकती थी. तो ये वो कहती हैं कि भाई स्कॉटिश लैंग्वेज मेरे को इसलिए समझ में आती है, इसलिए मैं इतना क्लियरली बोल रही हूँ क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैं सुन सकती थी, तो भाषा जो थी मेरे लिए आसानी से समझने वाली बात हो गई. लेकिन अभी भी ये चीज़ अनएक्सप्लेन्ड है कि उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज लैंग्वेज में कैसे मास्टरी हासिल की. तो ये उनका हार्ड वर्क, उनका डिटर्मिनेशन ही यहाँ पे हमें समझ में आता है.
As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip. By learning again the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wood platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. तो कैसे, अगर म्यूजिक के बारे में पूछा जाए कि म्यूजिक तो बिना सुने आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कैसे आप उसको करेंगे, तो यहाँ पे वो कहती हैं कि म्यूजिक जो है मेरे हर बॉडी के पार्ट में घुसा हुआ है, मुझे गुदगुदाता है, टिंगल्स यानी गुदगुदाना मेरे स्किन में है, मेरे स्किन के थ्रू, मेरे चिक बोन्स के थ्रू, मेरे बालों के थ्रू। कहती है कि म्यूजिक मेरे बॉडी के हर पार्ट में कहीं ना कहीं मुझे गुदगुदाता है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं, जो कि वुडन रोज ऑफ स्टिक से बना, और स्टिक से जब उसके ऊपर पास करती हैं, जब म्यूजिक बजाती हैं, तो स्टिक से जो वाइब्रेशन आती है वो उनके उंगलियों के टिप तक जाती है और इससे उन्हें म्यूजिक महसूस होती है। ड्रम जब वो बजाती हैं तो ड्रम से जो रेजोनेंस, जो वाइब्रेशंस आती हैं, इको आता है, वो उनकी बॉडी जो है वो महसूस कर सकती है। और यहाँ तक कि जब वो किसी तरह का परफॉर्मेंस देने जाती है तो वहाँ पे वो अपने शूज़ को उतार के वो स्टेज पे जाती है, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही है, उसके वाइब्रेशंस वो अपने नंगे पैरों से, अपने फीट से, अपने लेग से वो महसूस कर सकें। और यही उनके म्यूज़िक के समझने का एक ज़रिया भी है और एक कारण भी है। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back some extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली, जब इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, सब खुश हुए, डिलाइटेड हुए, तो 1991 में उनको एक अवार्ड से नवाजा गया। वो था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड, ईयर अवार्ड था ये। सोलोइस्ट, उन्होंने अकेला परफॉर्मेंस दिया था और ये अवार्ड जो था उसकी विनर थी हैं। और यहाँ पे जो परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड थे, परक्यूशनिस्ट जो मल्टीपल तरह के तबला को बजा सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते हैं, प्लेयर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने बताया कि भले ही गॉड ने उससे सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया है। तभी तो जो हम अपने खुले कान से नहीं महसूस कर सकते, वो अपने इम्पेयर्ड हियर से, वो अपने डेफनेस के बावजूद भी वो बहुत डीपली उसको सेंस कर सकती हैं, और इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती हैं। नेचुरल है बच्चों, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, आप उसको उतने ही सच्चाई से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एवलिन ने भी यही किया। जब एवलिन की बॉडी में कान ने जवाब दिया, तो उनकी बाकी बॉडी पे गॉड ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस दिया, जिसको वो अपने डेप्थ तक सुनती थी, और वो उस डेप्थ से महसूस करने की वजह से वो म्यूजिक का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा दे सकती थी, बहुत ब्यूटीफुली। Evelyn confesses that she is something of workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives a high priority to classes of young musicians. Anne Ricklin of Beethoven Fund for Deaf Children say, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. तो यहाँ पे एवलिन बताती है कि वो कुछ नहीं है, वो एक वर्काहॉलिक है, यानी कि वो अपने आप को काम से नहीं रोक सकती, उनको काम चाहिए, काम करने की उनकी पैशन है, तो वो सिर्फ काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। क्लासिकल म्यूजिशियन जितना वर्क हार्ड करता है, उससे कहीं ज़्यादा वो चाहती है कि वो वर्क करें, वर्क करती हैं, और उसका उन्हें बहुत इनाम भी मिलता है। रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन जो हैं वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी, जो पेड कॉन्सर्ट्स के अलावा फ्री में भी वो कहीं परफॉर्मेंस देती थी, कहाँ, या तो प्रिजन में या हॉस्पिटल में। और यहाँ तक कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती थी, यंग म्यूजिशियंस, जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं उनको भी इंस्पायर करती थी, और वहाँ पे वो अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा देती थी। बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, ये एन रिकलिन जो इसको बिलोंग करते हैं,
वो कहती हैं कि ये एक इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए, और डेफ बच्चे ये समझ के खुश होते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच सकते। और इसका होल सोल जो वो क्रेडिट देते हैं वो एवलिन ग्लीन को देते हैं, क्योंकि एवलिन ग्लीन भी एक डेफ पर्सन है, और अपने डेफनेस के बावजूद भी उन्होंने अपने लिए ऊंचा मकाम रास्तों को तराशते हुए किया। Evelyn Glynn had already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवलिन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हासिल किया, एकम्प्लिश किया, जो उनकी उम्र से डबल उम्र के लोगों ने भी हासिल नहीं किया होगा। और उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में जो तबला और ड्रम का जो पोजीशन था आगे रखवाया, अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने उसको एक स्टेज दिया, एक महत्व दिया, और यहाँ तक कि बहुत सारे हैंडीकैप लोगों को इंस्पायर किया, और नॉर्मल लोगों को भी ये सोचने पे मजबूर किया कि जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसके अलावा अपने परफॉर्मेंस से, अपने एटीट्यूड से उन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगियों में बहुत खुशी का एक मौका दिया है। So this was the first part of the chapter, students. It was really very inspiring, and we should take inspiration from all this, and we can also move further. God has given immense opportunities. बेशक हर स्टेज पे, हर काम में परेशानी होती है, लेकिन इतनी परेशानी कि आप अपने बॉडी के एक पार्ट से कहीं हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन फिर भी वो हैंडीकैप या इस तरह की कमी आपके सपनों के आगे बाधा नहीं बन सकती। तो हमको इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इबरत लेनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जो आप अटेम्प्ट करेंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके बुक से हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप को एक्स्ट्रा या वैल्यू बेस्ड भी हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? इसको आप पढ़िए, करिए। व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस? व्हेन वॉज इट कन्फर्म? कब नोटिस हुआ? 8 years की एज में। कन्फर्म कब हुआ? 11 years की एज में। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन शॉर्ट पैराग्राफ। Who helped her to continue with music and what did he do to say? तो यहाँ पे आपको पता है किसने इनके साथ काम किया और किसने इनको मोटिवेट किया। वो थे रॉन फॉब्स, एक ग्रेट परक्यूशनिस्ट। उन्होंने उसको ट्रेन किया म्यूज़िक को कैसे सुनना है साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू, बिना कानों के। ओके, सो रॉन फॉब्स, a great percussionist, trained her to listen the music sounds and vibrations, not through her ears but through other body parts. कैसे किया? By creating 2 drums with different sound notes and to make hear the higher beats from upper part of the body and lower beats from lower part of the waist. And this experiment was very effective, and then Evelyn didn't turn back and she became a very great percussionist. Now name the various places and causes for which Evelyn performs. ये आपके लिए लास्ट पार्ट का है, आप इसको देखिए। बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म करती हैं, हॉस्पिटल्स में, प्रिजन में, फॉर यंग एस्पिरेंट्स, एवरीवेयर शी परफॉर्म्स। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज बिग, 100 and 250 वर्ड्स में यू हैव टू डू। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? और Evelyn Glyn's deafness was more than compensated by other parts of her body so far as music was concerned. इसको डिस्कस करना है। तो ये एक ही क्वेश्चन है, 2 फॉर्म से पूछा गया है, एक टेक्सचुअल है, एक अलग फॉर्म से पूछा गया है। तो Evelyn Glynn had a deep passion for music, and but unfortunately she was having a hearing problem, and ultimately she lost her hearing completely at the age of 11. Now she wanted to lead a normal life and wanted to play a xylophone, but teachers, they disappointed her, discouraged her by considering her deaf. But one of the teachers, Ron Forbes, he inspired her, and he trained her to listen to the music sounds and vibrations, not through ears but through the parts of her body. He trained her, and then Evelyn found a path and she worked hard on it. Okay, now which trait of Evelyn's personality enabled her to overcome the challenge of deafness? कौन सा trait? Evelyn's firm determination, उसकी जो will थी, Evelyn's firm determination, her hard working nature, industrious nature, clarity of aim,
आर वेल रिवील्ड इन हर स्टेटमेंट्स। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स आपने अभी पढ़ा उसमें उनकी क्लैरिटी थी, उनको एक एम सेट था, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, वो कभी किस्मत पे नहीं छोड़ रही थी, एंड मोर ओवर शी वॉज डिटरमाइंड, एंड दीज वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स दे एनेबल्ड हर टू ओवरकम हर handicap of deafness very bravely. And although she developed hearing impairment at very young age, but she never let it become a stumbling block in her way to success. It could have never stopped her way, okay? And she was firmly determined to lead a normal life, a normal person. So she never gave up her passion for music. So these all things tell us that she had these personalities enabled her to overcome, and moreover she was even a workaholic, and she wanted to work. She helped herself to work hard, much harder than many classical musicians do, to bring percussion in front stage in the orchestra. And she also believed that no goal is unachievable for those who work hard and are focused on the goal. So students, these all things are the points to be remembered, points to be kept in mind, and moreover these are the points that one should be keeping in or getting it in one's life. आपको ये अपनी ज़िंदगी में भी लेके चलना है, यहाँ से आपने ये सीखना है. दिस इज़ द इंस्पिरेशन व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दिस चैप्टर. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. देन कुछ पॉइंट्स आप ये भी दिमाग में रखिए कि हाउ फैसिनेटिंगली शी स्पोक द लैंग्वेज by watching lip movement, face and especially eyes. Then she learned French and basic Japanese, जो उनके बिल्कुल भी मुश्किल पार्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको अपने डिटरमिन्ड नेचर से उन्होंने किया. She was a workaholic and she was rewarded very much enormously. So these are some of the points, and basic point, the most important is besides regular concerts, she gave free concerts also in prison and hospitals. She taught young musicians in her top priority, and her life is totally an inspiration for all differently abled people. सिर्फ differently abled people के लिए नहीं है ये नॉर्मल इंसान के लिए भी, कि जिनके पास सारी कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी वो कभी कभी डिप्रेशन में हो जाता है, या कभी कभी वो लाइफ से बेजार हो जाता है. So this was a very beautiful lesson, students. Hope you will get many things from this. So again, thank you, and if you have liked, then you share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. So thank you.